So let us solve a good question asked in TIFR 19. Okay. So in that question, there is a double slit experiment. There is a double slit. I have used laser source having wavelength of lambda, that is 1.2 micrometer. Okay. And also they have provided the separation between slit and screen. Separation between slit and screen, that is noted as capital D. That is provided. This value is basically 1.8 in meters. Okay. So wavelength, that is in micrometer, but this D, that is in meter. Okay. And they observe this kind of pattern. So that pattern I am writing here. So they observe a big bright spot. Then you have several primary maxima that is given. Then there is a missing. Then there is a missing. On the left hand side also, there is a primary maxima or bright spot, this kind of. Then there is a missing. Okay. So this kind of spectrum they noticed. Okay. And these are the parameter that is provided. Okay. So what you have to calculate, you have to calculate the slit separation. You have to calculate the slit separation between two slits. That is how much. Okay. And also this distance they have given. This distance, that is 0.6 सेंटीमीटर. ये जो डिस्टेंस है ये आपका गिवन है. ठीक है. How will proceed? Can you please tell me? Okay. So okay. So can you please tell me the separation between central bright and जो आपका first minima है, minima कौन सा है? These are actually primary maxima. Okay. And in between primary maxima, these are known as what? Secondary minima. ठीक है ना? ये आपका क्या है? Primary maxima है. And in between primary maxima, you have secondary minima. But we can able to find from this spectrum the position of first primary minima. कहाँ पे होगा? The distance between central bright and position of first primary minima. That will be how much, Rajkumar? If this distance is 0.6 centimeter, the position between central bright and first primary minima, that will be how much? That will be exactly half of given value. That will be 0.3 centimeters. So I'll use the condition of primary minima, that is A sin theta should be equals to n lambda. And I am discussing about which minima? That is first primary minima. So n should be how much? That should be 1. So this will be the condition. Okay. From here I'll get the value of slit width. कितना हो जाएगा? lambda by sin theta. Sin theta के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? If you remember, sin theta is nothing but what? अंजू कितना होते हैं? That is y by capital D, right? Sin theta is nothing but y by capital D. If you can imagine that spectrum, किस तरह की होता है? Sin theta that should be equal to y by capital D. अच्छा, फर्स्ट प्राइमरी मिनिमा के लिए y कितना हो जाएगा? Can you please able to tell me what is the value of y? 0.3. Exactly, it should be 0.3 centimeter. So this is your sin theta. Now lambda is given, that is how much? 1.2 micrometer. So I can write 1.2 into 10 to the power minus 6 meter. Then you have sin theta, that is nothing but y by d. Y is 0.3 centimeter. So in place of y, I'll write 0.3 into 10 to the power minus
2 meter, and the d will become to numerator, and that value is given. That will be how much? 1.8 meter, right? That is given. So from here you can calculate the value of A. I have calculated. You will get this value around 0.72 millimeter. 0.72 millimeter. Okay. Now, can you please tell me how we'll calculate? So we have obtained that value of slit width. Now, if you know that slit width, you can calculate that slit separation as well. How to proceed now? Now we see there is a missing order here. So this spot corresponds to n equals to 0. This is a central bright. N equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which one is missing here? N equals to 7, that primary maxima is missing, right? Am I correct? N equals to 7, that primary maxima actually overlapping with first primary minima. So I'll use that concept of missing order. That is nothing but, if you remember, d by a, that should be equals to how much? N by m. Exactly. Okay. So n will be what? 7 for corresponding m equals to what? How much? m कितना है यहाँ पे? अंजू बताओ. 1, sir. Exactly. So it means slit separation that should be equals to how much? 7 times a. And we have obtained that value of a. So I can write 7 into 0.72. Right? So if you calculate, you will get 5.04 in millimeter. So this is the slit separation. It's a really nice question actually. Is this clear to all? Yes, sir. Okay. Shall I erase? Yes, sir. Now problem number 2. In problem number 2, there is a single slit. There is a single slit Fraunhofer diffraction. Okay. So this experiment is actually performing by using two sources. Okay. So this experiment is basically performing by using two different laser sources having wavelength lambda O. Lambda O means orange color wavelength, and that is given. That is 600 nanometer. And they are using another sources of light or laser having wavelength or blue color wavelength, that is also given 450 nanometer. Okay. And they have mentioned the small angle at which only orange color is observed, that is noted by theta 1. Okay. And small angle at which only blue color is observed, that is noted by theta 2. And also they have given that slit width. Slit width is given, that is A equals to 18 micrometer. So what you have to calculate? You have to calculate that modulus of theta 2 minus theta 1. That you have to calculate. Can you able to solve? So how to proceed? हाँ बताओ कैसे करें?
Okay. Theta is equal to lambda by A. Like, Okay. कर To सकते calculate smallest angle, that n value, so we'll use that concept of principal minima. So we know a sine theta, that should be equal to how much? N lambda. The concept, this is the formula for what? Ruby, Rajkumar, batao. This is the minima path difference. Okay, this is the condition for minima. So I'll use this concept to calculate theta 1 and theta 2. Okay. So for orange color, the smallest angle, how will write? So I'll write this formula. A sine theta 1, that should be equal to how much? For smallest angle, that n should be equal to how much? Anju? N should be equal to how much? That One. should be exactly. Because smallest value of n that is allowed, that is only 1. Okay, minimum value of n. So from here, can I write that should be equal to lambda O? That should be equal to lambda O. Now, they itself said that theta is small. Theta is small, so I can write in place of sine theta 1, I can write theta 1, right? So I can simply write theta 1, that should be equal to lambda O by A. And similarly, if you calculate for blue light, can I write theta 2 will be how much? बताओ, शेखर बताओ, कार्तिक, कितना हो जाएगा theta 2? So theta 2 is basically corresponding to what? That is basically corresponding to blue light. The smallest angle at which only blue color is observed, that they have mentioned that is theta 2. So if I apply this for blue color, then theta 2 will be nothing but lambda b by A. Lambda b by A. Lambda O, lambda b and A, everything is given. So now I can calculate theta 2 minus theta 1. And that should be equal to how much? 1 by A, then you have lambda b minus lambda A. Sorry, lambda O, right? So now I will substitute that value. Now if I substitute this value, lambda O is how much? Sorry, lambda B, 450 nanometer. So I can write 10 to power minus 9. Okay, I can write 10 to power minus 9, right? Then you will have 450 minus 600. Divide by A. A is given how much? 18 micrometer, right? So I can write 18 into 10 to power minus 6 meter. 18 into 10 to power minus 6 meter. So this will come in what? This will become in actually radian. So you have to convert this into degree also. So what you have to do? You have to multiply by 180 by 5. Okay. So if you calculate this value, you will basically get 0.47 degree. Okay. So basically here you will get minus sign. Okay, 450 minus 600. But they ask about that to take, you have to mod, right? So if you take mod, so this will become what? This will become positive number. So you will get 0.47 degree. Okay. सर ये 180 by pi हम रेडियन से डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए. हाँ. ओके सर. ओके. कल हम लोगों ने शायद एक क्वेश्चन किया था ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा, है ना? इफ यू रिमेम्बर, वी हैव डन वन क्वेश्चन, राइट? यस सर. हाँ, जहाँ वहाँ पे आप लोग ठीक कर लो, है ना? वहाँ पे मैंने बोला था कि जो आपका लैम्डा यूज्ड है वो कितना बोला था हमने? I told you this should be 630 nanometer, but there is a typo there. It should not be nanometer, it is actually given in micrometer. तो जहाँ पे आपने नैनोमीटर लिखे हो ना, वहाँ पे माइक्रोमीटर लिख लो, ठीक है? Okay. Yes, sir. Okay. Now we are going to discuss about ray optics.
So first we will discuss, that is laws of a reflection. Laws of reflection. So suppose you have a surface. Suppose you have a reflecting surface. Okay. And there is a ray incident on this surface. Okay. And it will be reflected back. So how will calculate that incident angle? So you have to make a normal. So this is your incident ray. Okay. I can note like I. This is your reflected ray. Okay. And this is actually what? This is your normal. So we have to calculate that angle of incident always with respect to what? Normal. So first laws of reflection is what basically? The angle of incident, that is, let us denote that I, that should be same equals to angle of reflection. So first angle of incident, that should be equals to how much? That should be equals to angle of reflection. Second law is what? The incident ray, reflected ray and normal all will be in the same plane. जैसे यहाँ पे कौन सा plane note हो रहा है? Yeah, this, suppose this is your incident ray, this is your reflected ray, and this is your normal. If you see, this all three actually are in the plane, and that plane is basically board. देखो तीनों जो रे है, they are basically in the same, तीनों जो आपका line है, they are basically on the same plane. And which plane is this actually? That is the plane of board. So you can mention that incident ray, a reflected ray, and normal will be in the same plane. ठीक है. सपोज मान लो आपके पास कोई डिफ्यूज सरफेस है एंड सरफेस इज लाइक दिस. ठीक है. एंड ए पैरेलल बीम इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस. ठीक है. क्या यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा सारे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा? व्हाट आई एम आस्किंग, ए पैरेलल बीम इज कमिंग and there will be reflection of light also, right? There will be reflection of light also. अब मेरा क्वेश्चन ये जो है कि हर एक जो रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हर एक का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या सेम होगा? इज दिस द सेम? नहीं होगा. So for diffuse surface, all the beam are coming parallel, but if you draw normal to calculate, if you draw normal to calculate that angle of incident, you can clearly notice from this figure, the angle of incident will not be same. Although the ray is parallel, but due to the diffuse surface, the angle of incident will not be same. ठीक है ना? तो angle of incident अगर same नहीं है, so from the first law, we can say that angle of reflection will not be same. Okay. So although that first law will be applicable here, but for all ray, the angle of reflection cannot be same because of diffuse surface. So for diffuse, if the surface is plane, there is no problem. For all rays, angle of reflection will be same. But for diffuse surface, it will not be same. ठीक है. Now, second thing about this law is about that reflection, that is image formation. Image formation by plane mirror.
इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। और मिनट, image formation by plane mirror. So how will calculate that image formation? So suppose आपके पास एक plane mirror है, suppose this is your plane mirror, ठीक है। आपके पास सपोज मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है दैट इज नोटेड बाय O, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहाँ से जो आपका रे स्ट्राइक होगा मिरर के ऊपर, कैन यू प्लीज टेल मी how much is the angle of incident for this ray? So this is your point object, angle of incident कितना है? 0 सर। एग्जैक्टली जीरो। तो ये जो है रे क्या करेगा, आपका रिफ्लेक्ट होकर वापसी आ जाएगा एट व्हाट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, इट विल बी जीरो, राइट। सो ये दैट फ्रॉम द पॉइंट रे, फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट ए रे इज गोइंग, and if that ray is normal to that plane mirror, let us denote this mirror as M, then it will be coming back, okay. So angle of reflection will be how much, zero, okay. Okay, so that let us assume another ray is let us assume another ray is striking this mirror, okay. So it will be reflected like this, okay. So let us assume that angle of, how will calculate that angle of incident? You have to make a normal, and this is the angle of incident I, and this should be same as angle of reflection, ठीक है। अब इसका इमेज किस तरह से फॉर्म होगा, तो सपोज मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इसको क्या दिखेगा, एक्चुअली ये आपका जो ये है आपका थोड़ा सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया है ना, इट शुड बी लाइक दिस, इस तरह से आपका आएगा। सो दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये जो रे आ रहा है, ये जो रे आ रहा है दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम ए वर्चुअल सोर्स, है ना। और वो वर्चुअल सोर्स का लोकेशन कहाँ है, इसको लगेगा कि यहाँ से आपका ये रे आपका आ रहा है ना। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूसिंग लाइट एंड दैट लाइट इज स्ट्राइकिंग दिस मिरर, ओके। तो जो रे आपका नॉर्मल मतलब एट एन एंगल ऑफ जीरो पे जो इंसिडेंट हो रहा है, उसके लिए आपका रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आएगा। And let us assume another ray is striking this mirror at an angle of I. So for this, that reflected angle will be same as incident angle. So now suppose you have a observer. Observer will look this reflected ray, and इसको क्या लगेगा, जो ये जो ray आ रहा है that is coming from a source, and that source will be, how will locate that source? You have to meet this point. इसको extend करो, जो आपका ray आपका यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है उसको आप क्या करो, एक्सटेंड करो, और इसको भी आप पैरेलली एक्सटेंड करो। तो जहां पे मर्ज होगा, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये जो रे आ रहा है कहां से आ रहा है, इस सोर्स से आ रहा है। तो जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, जो यहाँ पे इमेज बन रहा है दैट इज एक्चुअली इस ऑब्जर्वर के लिए क्या है, ये आपका वर्चुअल सोर्स है, ठीक है, ओके। अब सपोज मान लो एक इमेज को लोकेट करने के लिए कितना आपका रे चाहिए। सपोज मान लो इस कहाँ पे आपका इमेज बन रहा है, इसको लोकेट करने के लिए आपको कितना मिनिमम रे चाहिए, हाउ मेनी रेज यू रिक्वायर, एक्चुअली यू नीड एट लीस्ट 2 रे, एग्जैक्टली। तो एक इमेज को लोकेट करने के लिए आपको 2 रेज चाहिए, ठीक है। अब इस इमेज से जितना नंबर ऑफ रेज ज्यादा आएगा, ठीक है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो कितना है आपका 2 है, बट जितना रेज आपका ज्यादा आएगा उतना ही इस इमेज का क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। सपोज मान लो ये ऑब्जर्वर जो है इस इमेज को देख रहा है ना, इस ऑब्जर्वर के लिए जो आपका ये है सोर्स है लाइट का, वो क्या है एक्चुअली, दिस ऑब्जर्वर विल सी
और that observer will think this is actually the source of light, और यहाँ से जितना नंबर ऑफ आपका रेज आएगा, जो आपका रेज आएगा, that is actually virtual ray. तो number of that intensity that will be looking by this observer, that basically depends upon number of rays coming from this eye. ओके जितना नंबर ऑफ रेज ज्यादा आएगा उतना ही इसका इंटेंसिटी ज्यादा दिखेगा, है ना। अब सपोज मान लो ये जो आपका मिरर था, सपोज मान लो अपर पोर्शन को आप करो, अपर पोर्शन को आप ब्लैक पेंट कर दो, है ना, इसको आप ब्लैक पेंट कर दो या किसी से ढक दो, ठीक है। अब क्या ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व नहीं करेगा इस इमेज को, बताओ। तो सर करेगा सर। हाँ सपोज मान लो आधा पोर्शन जो है मिरर का, इसको मैंने ब्लैक पेंट कर दिया, या इसको मैंने किसी से आपका किसी से ढक दिया, है ना, ताकि ये यहाँ से आपका लाइट इधर पास नहीं हो पाए। तो आधा से लाइट नहीं आ रहा है बट आधा से आ रहा है। ऑब्जर्वर विल लुक दिस इमेज, ये आप इस इमेज को देख पाएगा, बट इसमें क्या डिफरेंट दिखेगा, क्या डिफरेंट दिखेगा इसमें, व्हाट विल बी द डिफरेंट। आधा जो रेज है वो बेसिकली इसका आंखों में नहीं पहुंच पा रहा है, आधा रेज क्या हो रहा है, पहुंच पा रहा है, तो इसका इंटेंसिटी क्या दिखेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। So that is what I am trying to say, that intensity of this image depends upon that number of rays coming actually. Okay, if you make that black, है ना, black paint on the upper portion of this mirror, you can see that image, but intensity will be less. ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है फील्ड ऑफ व्यू। व्हाट इज एक्चुअली फील्ड ऑफ व्यू? फील्ड ऑफ व्यू क्या है एक्चुअली? फील्ड ऑफ व्यू वो एरिया है, फील्ड ऑफ व्यू वो एरिया है जिस एरिया में अगर आपका आंख है, ठीक है ना, ये आपका वो वाला एरिया है जहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस इमेज को तो आप देख पाओगे, ठीक है ना। तो फील्ड ऑफ व्यू को आपको पता करने के लिए हाउ विल कैलकुलेट, हाउ विल अंडरस्टैंड दैट फील्ड ऑफ व्यू, कैसे आप लोकेट करोगे फील्ड ऑफ व्यू को, और हाउ विल कैलकुलेट दैट फील्ड ऑफ व्यू, एनीवन, हाउ विल कैलकुलेट फील्ड ऑफ व्यू? एंगल यूज करेंगे सर। नहीं, देखो फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करने के लिए सपोज मान लो आपके पास ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, मिरर का एंड पॉइंट है ना, और एक्सट्रीम पॉइंट। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक्सट्रीम पॉइंट में एक आपका रे स्ट्राइक कराओ, है ना, ठीक है। सो देयर विल बी ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। यहां से क्या होगा, रे रिफ्लेक्ट होकर भी जाएगा, यहाँ से रे आपका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होकर भी जाएगा, एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट विल बी सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। और अदर एक्सट्रीम पॉइंट मिरर का क्या है, ये है, यहाँ एक रे स्ट्राइक कराओ, ओके। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी हाउ मच, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, आपका रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है, क्या पता करने के लिए एक्सट्रीम पॉइंट में मिरर का क्या करना पड़ेगा, आपको रे को स्ट्राइक करना पड़ेगा। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली द फील्ड ऑफ व्यू। मतलब इस एरिया में अगर आपका ऑब्जर्वर कहीं पे भी है, देन इट कैन लुक दिस और इट कैन फाइंड द इमेज, ये आपका ये इमेज को देख पाएगा। अगर कोई आपका सपोज मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, सपोज मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज तो यहाँ बन रहा है, बट ये आपका नहीं देख पाएगा क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू जो रीजन है उसके बाहर है। तो फील्ड ऑफ व्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या है, आपका दो रे चाहिए, क्या है, एक आपका एक एंड में स्ट्राइक कराओ और दूसरा रे को दूसरा एंड में स्ट्राइक कराओ। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल बिटवीन दिस टू रिफ्लेक्टेड रे इज बेसिकली योर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब इस एरिया में ऑब्जर्वर अगर है तो इमेज को देख पाएगा, अदरवाइज इट कांट ऑब्जर्व दिस इमेज, ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
सपोज इस तरह की आपके पास मिरर है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। इस तरह की आपके पास एक मिरर है ना, और आपका ऑब्जर्वर सपोज मान लो, सॉरी आपके पास ये यहाँ पे आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनेगा? क्या इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनेगा? यस सर, बनेगा। लेगा। क्या ये ऑब्जेक्ट इसका इमेज देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। देखो तो और इसको इमेज को देखने के लिए किस रीजन में होना चाहिए बताओ? फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए, नहीं? इस ऑब्जेक्ट इसका इमेज को देखने के लिए, खुद का इमेज को देखने के लिए इसको किस रीजन में होना चाहिए? फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए। अब फील्ड ऑफ व्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? दो एंड पॉइंट, ये आपका मिरर का एक एंड पॉइंट, एक आपका एंड पॉइंट है। यहाँ एक रे स्ट्राइक कराओ, ठीक है। सपोज ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी व्हाट? आपका रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाएगा। ये एंगल तो मेरा बड़ा हो गया, इतना बड़ा तो नहीं होता है। सो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ये रे आपका स्ट्राइक किया और इस तरह से वापसी आया। आप दूसरा एंड में एक और रे आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा। सपोज दिस रे स्ट्राइक अदर एंड, है ना, एंड लेट अस डिनोट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज दिस, ठीक है ना। ये आपका नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने। सो द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, सो दैट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ से आपका रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से जाएगा? इट विल बी लाइक दिस, ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू कौन सा रीजन हो जाएगा? अंजू बताओ। वो दोनों कनेक्ट करके। ये जो ए है, एरिया है, दिस विल बी द फील्ड ऑफ व्यू। तो इसके कारण आपका इमेज तो बनेगा। इमेज सपोज मान लो कहाँ पे बन रहा है, इसका दोनों को एक्सटेंड कर दो आप, एक्सटेंड दिस, है ना। इसका इमेज तो बनेगा, बट ये अपना इमेज को नहीं दिख पाएगा क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू का जो रीजन है उसके बाहर है, ठीक है। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो इमेज आपका यहाँ पे इमेज हो रहा है, बट इट कांट सी इट्स इमेज बिकॉज फॉर दिस फील्ड ऑफ व्यू इज दिस रीजन, है ना, इसीलिए वो नहीं देख पाएगा। अच्छा, एक बढ़िया प्रॉब्लम है, इसके बेस पे करो, है ना। प्रॉब्लम, लेट अस डू प्रॉब्लम। बेसिकली यहाँ से हम प्रॉब्लम ज्यादा करेंगे क्योंकि रे ऑप्टिक्स वी ऑलरेडी हैव डन इन 12th क्लास, एंड यहाँ पे मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बताऊंगा और मेन चीज बताऊंगा। वैसे हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, बट ज्यादातर हम प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। सपोज दिस इज योर कोऑर्डिनेट, सपोज दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, है ना। और एक आपका मिरर है, सपोज दिस इज योर प्लेन मिरर, दिस इज योर प्लेन मिरर, ओके। एंड द एंगल बिटवीन दिस इज गिवन एक्चुअली। ये मेरा थोड़ा बड़ा हो गया एंगल, दिस एंगल एक्चुअली स्मॉल, दैट इज 30 डिग्री दे हैव गिवन। दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन से 2 मीटर दूरी पे, 2 मीटर दूरी पे एक आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। दिस इज योर ओरिजिन। यहाँ पे आपका सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है 2 मीटर दूरी पे, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करनी है कि डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इसका जो इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हाउ विल कैलकुलेट? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो बहुत ही सीधा है ये। इस मिरर को आप एक्सटेंड करो, इस मिरर को आप, सर हाँ सर क्वेश्चन एक और बार रिपीट करो। हाँ, okay, I'm repeating question. So suppose this is your coordinate they have given. This is your x coordinate, y coordinate. A plane mirror, ये आपका एक मिरर है रखा गया है. This is your mirror, and that angle between this mirror and y coordinate that is given 30 degree. Then what they have given, a point object is kept. This is your point object O. That point object is kept at a distance of 2 meter from the origin. Origin से जो point object का distance है that is 2 meter. So what you have to calculate? You have to calculate the distance between this point object and
image formed by this object. Image formed by this object. How to calculate? So very simple. To locate this point object, you have to extend this mirror. आपको mirror को extend करना पड़ेगा, तभी आप point इसका जो location है वो find करोगे. तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट जो आपका मिरर था इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया. अब बताओ कहां पे आपका इमेज बनेगा. इमेज कहां पे बनेगा? तो जस्ट यू हैव टू मेक ए नॉर्मल. यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो. सो इट लुक लाइक ए यू हैव ए मिरर एंड you have drawn a normal. So it look like a, suppose a ray is going striking this mirror and is coming back. And suppose मान लो ये डिस्टेंस है, सपोज मान लो ये मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है ना. तो आपका इधर आपका क्या बनेगा, आपका बेसिकली सॉरी, so basically you will get image like this. एक मिनट. तो सपोज मान लो ये आपका मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. सो द डिस्टेंस बिटवीन, ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, दैट विल बी सेम एज डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज. सो सपोज मान लो आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. तो नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. कैसे कैलकुलेट करोगे? सो दिस डिस्टेंस यू कैलकुलेटेड, दिस इज दैट इज गिवन 2 मीटर. अच्छा ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना हो जाएगा? दैट शुड बी 30. कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा. इफ दिस एंगल 30, दिस शुड बी हाउ मच? दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. दिस एंगल you have drawn normal, this angle will be how much? 90 degree. Okay. Now from this triangle, this is actually perpendicular, this is hypotenuse, and this is base. So this perpendicular, so this perpendicular can be calculated. Suppose this is x perpendicular. So this x should be equals to how much? Hypotenuse, that is 2 into sine of 60. So that will be how much? 2 into root 3 by 2. So we can calculate the distance between that object and mirror. So that is how much? That is 2 root 3 by 2. Am I correct? 2 root 3 by 2. Okay. So that will be how much? Root 3. ठीक है. तो मेरे को ये मिला है कि जो आपका ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस मिला है, दैट इज हाउ मच? रूट 3. बट हमको कैलकुलेट क्या करनी है? वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज. तो सपोज मान लो इस तरह की केस है. सपोज मान लो आपके पास एक मिरर है और आपका जो ऑब्जेक्ट है, अच्छा परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे, है ना, तो सपोज मान लो आपका यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा है. So the distance between mirror and object, that will be same as distance between what? Mirror and image. जो आपका ऑब्जेक्ट से मिरर का जो डिस्टेंस होता है, that will be same as mirror and image का डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितना है? रूट 3. So the distance between mirror and object, mirror and image, that should be again root 3. So you will get that distance between object and image, that should be equal to how much? 2 root 3 meter. ठीक है. That should be equals to how much? 2 root 3 meter. Okay, now I'll do another interesting problem. Okay, please be focused. ठीक है. सपोज मान लो एक मिरर है. सपोज मान लो आपके पास एक मिरर है. This is your mirror, M, प्लेन मिरर, ठीक है, और एक पर्सन है. इनका जो हाइट है दैट इज गिवन, दैट इज इनका जो टोटल हाइट है दैट इज कैपिटल H. और सपोज मान लो ये जो पर्सन है, इनका जो
आई है दैट इज ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, मतलब इसका जो आई है दैट इज ऑन द टॉप लेवल, है ना। सपोज मान लो सर के ऊपर उनका आंख है, जस्ट एज्यूम। अब क्वेश्चन ये है कि इस मिरर का पोजीशन एंड लेंथ कितना हो ताकि ये जो पर्सन है एक खुद का इमेज पूरा देख पाए। What you have to calculate? You have to calculate the effective length of this mirror as well as position of this mirror so that this person can see whole of its image. Whole of its image मतलब बॉटम से टॉप तक पूरा इमेज वो खुद अपना जो इमेज है वो देख पाएगा। तो इसका मिरर का लोकेशन बताना है और इसका लेंथ बताना है आपको, ठीक है। और इसका जो आई है दैट इज एक्चुअली ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, ओके। तो सपोज मान लो एक रे आपका बॉटम से इंसिडेंट हो रहा है। अच्छा, इस बॉटम से मिरर का कौन सा पोजीशन में स्ट्राइक हो आप लोग बताना। इस बॉटम जो आपका इसका फीट से मिरर का कौन सा पोजीशन में स्ट्राइक हो ताकि ये रे जो है इसका आंखों पे आकर गिरे। बताओ कौन सा पोजीशन में स्ट्राइक होना चाहिए, बताओ। h/2. Exactly, because what you have to apply that laws of reflection, ठीक है। angle of incident that should be equals to angle of reflection. So when that ray is coming from the bottom of his leg, it should incident where at the height of capital H/2. Then this reflected ray will be coming back to his eye. Coming back to his eye. ठीक है। Why? Because angle of incident that should be equals to angle of reflection. तो इसके कारण क्या है, ये जो रे है आपका इंसिडेंट रे दैट शुड स्ट्राइक वेयर, इट शुड स्ट्राइक एट ए हाइट ऑफ कैपिटल H/2, मतलब मिडिल में आपका स्ट्राइक करना पड़ेगा तभी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस पर्सन का आंखों में आके स्ट्राइक करेगा, है ना। तो इस फीट का इसका इमेज देखने के लिए कहां पे स्ट्राइक करना पड़ रहा है, एट H/2, ठीक है। अच्छा, जो रे सपोज मान लो तो यहाँ से उसको मतलब ये फीट वो देख पा रहे हैं। अच्छा, बॉटम लेवल वो देख पा रहे हैं कब, जब H/2 से आपका लाइट इंसिडेंट हो। अच्छा, ये अपर वाला पोर्शन देखने के लिए सपोज मान लो एक रे आपका इस तरह से जा रहा है, सपोज मान लो एक रे आपका इस तरह से स्ट्राइक हो रहा है मिरर के ऊपर, तो फिर ये वापसी भी आएगा, ये वापसी भी आएगा। जब वापसी आएगा तो फिर ये अपना टॉप पोर्शन भी देख पाएगा। तो मिनिमम लेवल देखने के लिए और बॉटम लेवल देखने के लिए कौन सा लेंथ चाहिए, H/2। तो यहां से सारे होल अपना लेंथ और होल अपना इमेज देखने के लिए H/2 से मिरर का लेंथ कहां से शुरू होना चाहिए, इफेक्टिव लेंथ H/2 से शुरू होके कहां तक होना चाहिए, टॉप लेवल तक। मतलब इतना लेंथ होना ही चाहिए अपना पूरा इमेज देखने के लिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, कैपिटल H/2। दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, कैपिटल H/2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बॉटम से देखने के लिए मतलब बॉटम को देखने के लिए कैपिटल H/2 में स्ट्राइक होना चाहिए, होना पड़ेगा तभी देख पाएगा, है ना। और टॉप लेवल को देखने के लिए क्या है, यहाँ से जो पैरेलल बीम स्ट्राइक कर रहे हैं मिरर पे वो आके आपका टॉप लेवल देख पाएगा, है ना। तो दैट इज एक्चुअली द इफेक्टिव लेंथ ऑफ, दैट शुड बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस मिरर। इतना आपका लेंथ होना ही चाहिए ताकि ये पर्सन अपना खुद पूरा अपना इमेज को देख पाए, है ना। ये हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इतना आपका होना ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम बताओ। देखो, सपोज अगेन यू हैव ए मिरर, अगेन यू हैव ए मिरर, ठीक है। नाउ ए पर्सन इज स्टैंडिंग, ए पर्सन इज स्टैंडिंग, ओके। अब टोटल जो हाइट है पर्सन का दैट इज एक्चुअली 2 मीटर,
इसका बॉटम से टॉप तक जो है हाइट कितना है 2 मीटर, ठीक है ना। अब इस टाइम इसका जो आई है दैट इज नॉट ऑन द टॉप बट इट इज बिलो, कितना नीचे है 20 सेंटीमीटर नीचे है टॉप लेवल से, 20 सेंटीमीटर नीचे है टॉप लेवल से, जो ऑब्वियस है ना। अब ये क्वेश्चन है कि इस मिरर का इफेक्टिव लेंथ कितना हो ताकि ये पर्सन अपना पूरा इमेज खुद देख पाए, है ना, अपना इमेज कंप्लीट इमेज देख पाए, ठीक है। अच्छा, आई से बॉटम का डिस्टेंस कितना है बताओ, टोटल कितना है आपका 1.80 1.80 1.80 और कैन आई से 180 सेंटीमीटर, जी सर। ओके ठीक है। अब बॉटम से रेज आएगा है ना और आंखों पे आके गिरेगा, है ना। सो दिस लेंथ इज हाउ मच 180 सेंटीमीटर। द रे कमिंग फ्रॉम बॉटम कहाँ पे गिरना चाहिए ताकि ये अपना बॉटम का इमेज देख पाए, बताओ 90 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली तो यहाँ से बॉटम से जो रे आपका 90 सेंटीमीटर ऊपर गिरेगा, है ना, at from height of 90 centimeter, if this ray is striking at a height of 90 centimeter, then this ray will go and it will see the image of his feet, okay, और bottom part, ठीक है। तो मिनिमम जो पॉइंट है उसके लिए आपको कहाँ स्ट्राइक करना पड़ेगा 90 सेंटीमीटर पे। अच्छा, अब टॉप लेवल को देखने के लिए बताओ 110 सेंटीमीटर ऊपर। हाँ, अब सपोज मान लो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो टॉप लेवल को आई देखने के लिए कहाँ स्ट्राइक करना पड़ेगा, हाँ ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। हाँ एग्जैक्टली ये कहाँ पे स्ट्राइक करना पड़ेगा एक्चुअली, ये 10 जो आई और जो सेंटीमीटर। टॉप लेवल है ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक्चुअली, दैट शुड बी 10 सेंटीमीटर। डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, टू सी द टॉप लेवल दैट रे शुड स्ट्राइक एट वेयर एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तब वो आके फिर क्या देखेगा अपना इमेज देखेगा। मतलब 90 सेंटीमीटर से ये आपका कितना हो गया 90 सेंटीमीटर, है ना, और फिर 10 सेंटीमीटर, मतलब इफेक्टिव लेंथ कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 1 मीटर, कितना होना चाहिए 1 मीटर होना चाहिए, राइट, am I correct? यस सर। यस सर। That should be equal to 1 मीटर, ठीक है। अच्छा सर क्वेश्चन में पोजीशन पूछा है ना, हाँ, तो क्या होगा? पोजीशन एंड इफेक्टिव लेंथ, तो पोजीशन कहाँ आपका बॉटम से कितना हाइट पे होना चाहिए मिरर 90 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, एंड इसका लेंथ कितना होना चाहिए इफेक्टिव लेंथ, दैट शुड बी 1 मीटर, है ना। 1 मीटर कैसे समझ में आए ना, बॉटम से कितना हाइट पे गिरना चाहिए 90 सेंटीमीटर, टू सी दैट बॉटम पार्ट, अपर पार्ट देखने के लिए अपर मोस्ट पॉइंट से 10 सेंटीमीटर नीचे गिरना चाहिए, अपर मोस्ट पॉइंट से 10 सेंटीमीटर नीचे गिरना चाहिए, तभी वो रे आपको क्या आएगा आंखों पे आके गिरेगा। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस अपर मोस्ट से 10 सेंटीमीटर नीचे और लोअर मोस्ट से 90 सेंटीमीटर ऊपर, ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे दैट यू विल गेट 1 मीटर, ओके ओके। I'll do many problems on this, but let us solve on simple problem. Suppose मान लो आपके पास दो मिरर्स है, M1 है and you have another mirrors M2, इनके बीच में सेपरेशन दैट इज गिवन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके मिडिल में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, कितना नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से M1 का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मिडिल में रखा है, ठीक है।
तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इस मिरर के कारण कहाँ पे इमेज बनेगा, कितना दूरी पे, आयन कहाँ पे बनेगा अंजू, दैट शुड बी 1 सेंटीमीटर अवे, है ना। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मिरर एम के कारण क्या बनेगा, इमेज बनेगा, दैट इज आयन, दैट इज 1 सेंटीमीटर अवे। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है दैट विल बी द सेम एज इमेज डिस्टेंस। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट के कारण M2 के कारण कहाँ पे इमेज बनेगा, लेट अस डिनोट दैट इज I2, again that should be 1 centimeter away from M2 because this distance is given, that is how much, that is 1 centimeter. ठीक है, so basically how what I am calculating, number of images, ठीक है। अच्छा, अब I2 जो है, I2 is basically the virtual object for mirror M1। ये जो I2 जो है, it will be virtual object for mirror M1। अब मिरर M1 से I2 का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड M1 दैट इज हाउ मच, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ इधर आपको मिरर से 3 सेंटीमीटर अवे आपको क्या मिलेगा, एक इमेज मिलेगा, दैट इज I3। सिमिलरली आयन इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2, आयन इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। डिस्टेंस बिटवीन आयन एंड M2 दैट इज हाउ मच, 3 सेंटीमीटर। तो इधर भी आपको क्या मिलेगा, 3 सेंटीमीटर अवे एक इमेज मिलेगा, दैट इज लेट अस अज्यूम दैट इज I4। अगेन I4 will act as a virtual object for mirror M1, so you will get a image for this object that will be away from I3। again I3 will act as a virtual object for mirror M2, so you will get a image of I3 on this side। So in this way you will get infinite number of image। So whenever you will have a object you kept in between two parallel mirror, you will get infinite number of images of this point object, you will get infinite number of images of this point object। okay, is this Yes. clear? Yes. okay, now suppose मान लो दो मिरर है, देयर दो क्रॉस मिरर है, लेट अस अज्यूम दिस इज योर M1 and this is your M2, okay, and the angle between these two is 90 degree। ठीक है, अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो है, ठीक है, and the angle between M2 and point object that is 45 degree, and this angle between object and M1 that is 45 degree। कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा इनके कारण, तो देखो एक आपका सपोज दिस डिस्टेंस है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के कारण एक इमेज बनेगा, कितना दूरी पे, ये जो डिस्टेंस है इतना ही दूरी पे क्या मिलेगा, एक आपका इसका एक इमेज बनेगा, लेट अस अज्यूम दिस इज I1। ठीक है, सिमिलरली इस मिरर के कारण इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा, सो दैट विल बी सपोज द डिस्टेंस बिटवीन M1 and object, if this is the distance then you will get a image of this object that will be at same distance, let us assume that is I2। ठीक है, तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे मिरर में, तो ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एंड मिरर है ना, ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी सेम एज डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। तो ये डिस्टेंस दो आपका इमेज मिल गया है। नाउ if you extend this mirror then I2 का एक इमेज बनेगा because of M2 and that will be I3। ओके, I2 बोलो या I3 के कारण भी बोल सकते हो, है ना, I3 के कारण M1 के कारण आयन का एक इमेज बनेगा and that will be I3। मतलब I3 क्या है, बेसिकली the image due to either I2 or ion। So basically for this you will get three images,
but I'll not do this kind of problem. I'll do use to calculate that number of image. I'll basically use the concept of criss-cross method. That's a really important for your exam. Criss-cross method. आप लोग कल किए हो कभी criss-cross method? हाँ? Have you done anyone? So suppose you have a two mirror M1 and you have mirror M2. Okay. Suppose मान लो एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है इनके बीच में. Angle between M1 and object, let us assume this is alpha. An angle between M2 and point object, that is, let us define that is beta. ठीक है. तो criss-cross method कैसे calculate करोगे? Number of image. Basically this method used to calculate number of image. So you have a M1 M2. ठीक है. Angle between object and M1, that is alpha, and angle between M2 and object that is beta. Okay, now you have to make cross. Angle between M1 and M2, that is how much? That is alpha plus beta. Okay, so first image you will see due to M1, that will be at an angle of alpha. इस साइड आपको एक इमेज मिलेगा इस ऑब्जेक्ट का ड्यू टू M1, that will be at angle alpha. सेकेंड जो इमेज बनेगा M1 में, M1 पे जो सेकेंड इमेज बनेगा M1 के कारण, that will be at what angle? अल्फा प्लस बीटा. इधर आप एक्सटेंड कर दो एंड इस एंगल को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा. तो सेकेंड जो इमेज बनेगा M1 के कारण, that will be अल्फा प्लस 2 बीटा, इस एंगल पे बनेगा. एंड M2 पे जो आपका इमेज बनेगा M2 के कारण, that will be at what angle? This angle plus this. So 2 अल्फा प्लस बीटा. फिर आप इसको एक्सटेंड करो, क्रॉस मारो. Then again you will see another image due to M1, that will be at what angle? कितना एंगल पे होगा अब? फिर आप बीटा जोड़ो यहाँ पे. So 2 alpha plus beta, so it will be 2 alpha, sorry, no. So 3 alpha plus beta, sir. no, yes, this will be 3 alpha plus beta. Very good. Plus beta, very good. This side Alpha plus 3 beta. अल्फा प्लस 3 बीटा. वेरी गुड. इस तरह से बढ़ते जाएगा. अब ये कब तक एक्सटेंड होगा? जब आपका कोई भी एंगल, अब ये इमेज, ये देखो, ये आपका जो इमेज एट अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा किसके कारण बन रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ M1. और ये जो इमेज है दैट एट एन एंगल ऑफ बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना? सर 2 बीटा नहीं हो सकता. यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ. ये कितना होना चाहिए? देखो चेक करो जरा. ये आपका कितना हो गया? अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट? ये आपका 2 अल्फा प्लस बीटा. देन इट शुड बी हाउ मच? 3 अल्फा प्लस बीटा, राइट? एंड दिस साइड 2 अल्फा प्लस 3 बीटा. गुड. 2 अल्फा प्लस 3 बीटा. अब इसमें अगर कोई भी एंगल आपका 180 से बड़ा हो गया या 180 के बराबर हो गया, देन इमेज विल नॉट बी फॉर्म. ठीक है, आपको कहां तक स्टॉप करना है? ये आपका एक्सटेंड होते होते अगर कोई भी इनमें से कोई भी एंगल 180 के बराबर या 180 से ज्यादा हो गया, देन इमेज विल नॉट बी फॉर्म फॉर दिस एंगल. सो हैव टू स्टॉप अप टू व्हिच, जब आपका एंगल 180 से छोटा है वहीं तक आपको रुकना है. 180 से बड़ा हो गया या उसके बराबर हो गया तो आपको वो इमेज काउंट नहीं करना है. I'll do a problem on this tomorrow. Okay, then it will be easy to understand. We should stop here. Tomorrow we'll do problem. Okay. Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर Yes. जो आपने बीच में अल्फा प्लस बीटा लिखा है वो नहीं इंक्रीज होगा, वो सेम रहेगा? ये अल्फा प्लस बीटा? यस सर. हाँ, नहीं, इधर देखो, जब भी आप इधर एक्सटेंड कर रहे हो, बेसिकली व्हाट यू आर एक्सटेंड ये कर रहे हो, यहाँ पे आपका
नहीं ये आपका नहीं, ये एक्सटेंड नहीं करना, ये आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा ही रहेगा। ये एंगल जो है आपका, दैट दिस एंगल इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हिच एंगल, दैट इज बेसिकली दोनों मिरर के बीच। हाँ, दोनों M1 एंड M2 के बीच में जो एंगल, वो आपको एक्सटेंड नहीं करना, वो एज इट इज अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा, है ना। ओके सर। सर